پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 1,50,941 کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج کابل میں ہو رہا ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے امور پر بات ہوگی۔ سہ فریقی تعاون مزید مؤثر بنانے، خطے کی مجموعی ترقی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات اور سرحدی تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت متوقع۔ پاکستانی وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کل سے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ پاک چین وزراء خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے مشترکہ صدارت کریں گے۔ باہمی مفادات، اقتصادی اور تجارتی تعاون میں اضافے اور علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ چین اس دورے کے ذریعے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایاجی ٹاکوما سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جاپان معاشی، ٹیکنالوجیکل اور معاشرتی ترقی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ جاپان کی ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہوں۔ زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے مریم نواز شریف۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ متاثرین کے محفوظ مقامات پر منتقلی اور خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات متاثرین کی مدد میں مصروف۔ تندہی سے کاوشوں پر تمام متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بارشوں اور سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کراچی میں موسلا دھار بارش، شہر میں اربن فلڈنگ، نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی شدید متاثر، مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق۔ حکومت سندھ کا آج کراچی کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز کے دوران سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، ٹھٹھہ بدین، میرپور خاص، حیدرآباد، سانگھڑ اور جامشورو کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، نکاسی آب کے پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل۔ ترجمان این ڈی ایم اے۔ پاک فضائیہ کی گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں۔ زمینی راستے منقطع ہونے کے باعث پریشان حال خاندانوں تک ضروری سامان بروقت پہنچانے کے لیے پاک فضائیہ متحرک۔ C-130 طیارے کے ذریعے 60 ٹن خشک خوراک، اشیاء خورنوش اور ضروری ادویات نور خان ایئر بیس سے گلگت بلتستان پہنچائیں اور سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ افواج پاکستان کی انتھک امدادی کارروائیاں قدرتی آفات کے دوران قیمتی جانوں کے تحفظ کے بھرپور عزم کا منہ بولتا ثبوت۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے 358 افراد جاں بحق، 181 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 287 مرد، 41 خواتین اور 30 بچے شامل۔ 780 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ضلع بنیر میں مجموعی طور پر 225 افراد جاں بحق ہوئے۔ سوات، بنیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر، لوور بٹاگرام اور سوابی شدید متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ سیلاب کے بعد صوبے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نلتر ایکسپریس وے، بابوسر روڈ، غزر ایکسپریس وے اور دیگر شاہراہوں کی بحالی پر گفتگو۔ بھاری مشینری اور بہترین ورک فورس کے ساتھ کام جاری ہے، عبدالعلیم خان۔
सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। अब तक 200 गैर कानूनी तामीरात मस्मार। नेशनल पार्क की 191 कनाल इराजी वागुजार। 360 कनाल इराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों पर पेशरफ्त का मुआयना। वजीर दाखिला का तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। राशिद मिन्हास ने 1971 में मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। ये शहादत मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को शानदार खिराज अकीदत ISPR। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। उनकी अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फ़र्ज से लगन की आला रिवायात की मज़हर और लाजवाब जज्बा हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफ़वाज और कौम के लिए तरगीब का बाइस है। राशिद मिन्हास शहीद का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफादारी, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। वज़ीर आज़म का राशिद मिन्हास शहीद के यौम शहादत पर पैगाम। मोदी सरकार का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जमहूरी ढांचे पर हमला। मुतनाज़ रीऑर्गेनाइजेशन बिल ज़ेर गौर। आर्टिकल 35A की तनसीख के बाद से कश्मीर में सियासी ढांचा मुसलसल दबाव का शिकार। सूरत हाल मजीद पेचीदा। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कानूनी हैसियत पर अहम कानून साजी, मरकज के इख्तियारात में तोसी। मोदी सरकार के इस इक़दाम से कश्मीरी अवामी मैंडेट बराह रास्त मुतासर। अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल्स पेश करने का ऐलान कर दिया। दीवार की रिपोर्ट। भारतीय इलेक्शन कमीशन बीजेपी का सियासी हथियार, जाली वोट और जाली हुकूमत। राहुल गांधी ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। इंतखाबी धांधली, जाली इंदराज और मोदी सरकार के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन का असल मकसद। 1 लाख जाली वोट हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? पूरे मुल्क में आपकी चोरी अवाम को दिखाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी। भारत का चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़ा। मोदी घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी हुकूमत सियासी, अस्करी, इक्तसादी और सिफारती सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम। तवील फौजी तनाज़े के बाद भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़। भारतीय अस्करी नाकामियों के बाद मोदी सरकार का खुद मुख्तारी का बयानिया सिर्फ एक सियासी नारा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का फ़लस्तीन और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की हालत ज़ार पर इजहार तशवीश। जिनसी तशद्दुद का जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा इलाकों में इंसानी वक़ार के खिलाफ जिनसी तशद्दुद जैसे बदतरीन जुर्म के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई करे। सलामती काउंसिल एहतसाब यकीनी बनाए और मुजरिमान के इस्तिस्ना का खात्मा करे। सलामती काउंसिल में तनाज़ात से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद पर सालाना मुबाहिसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। इमदाद के मुंतज़र 8 अफराद समेत मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी मसालिम ने 20,000 के करीब बच्चों समेत 62,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान ली। इसराइल समेत दुनिया भर में लाखों अफराद का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 17 बच्चों समेत 71 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। ईरान से बेदखल किए गए गैर कानूनी अफगान शहरियों की बस तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 ट्रक ड्राइवर समेत मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद भी जाँ बहक। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा की चांसलर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम के साथ खुसूसी नशस्त। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम को उजागर किया।
बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ हमारी नौजवान नस्ल मुत्तहिद है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह रहना होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम। सैफ अफ्रीकी सीरीज और ACC एशिया कप T20 कौमी टीम आज दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड पाकिस्तान से 4 मुख्तलिफ ग्रुपों की सूरत में दुबई रवाना होगा। खिलाड़ी कल से दुबई में तरबियती कैंप में शिरकत करेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने सऊदी सुपर कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगकांग में खेले गए सेमीफाइनल में अल नसर ने अल इत्तेहाद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। शायकीन की बड़ी तादाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आई। दूसरे सेमीफाइनल में अल कादसिया और अल अहली की टीमें आज मद्दे मुकाबल। पोलैंड की अगा श्वेटिक ने करियर का पहला सिंसिनाटी ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में अगा श्वेटिक ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को शिकस्त दी। श्वेटिक ने फाइनल तक सफर में कोई सेट नहीं हारा। श्वेटिक ने पाओलिनी को 7-6 और 6-4 से जेर किया। यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स इटली के आंद्रे वावासूरी और सारा ईरानी सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। नॉर्वे के कैस्पर रुड और पोलैंड की एगा और अमेरिका की मुअम्मर खिलाड़ी वेनिस विलियम्स ने यूएस ओपन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। 45 साला वेनिस विलियम्स को यूएस ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। वेनिस विलियम्स 44 वर्षों में इवेंट में शिरकत करने वाली उम्र रसीदा तरीन खिलाड़ी होंगी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मईशत के हवाले से। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के हवाले से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स इस वक्त 1190 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,50,963 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज की बदौलत मुल्क के माशी आशारिया मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। जुलाई 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारी 7% इजाफे के साथ $20 करोड़ से तजावुज कर गई। हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज की वजह से सरमायाकार भरपूर अंदाज में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट को डॉलर्स के हिसाब से आलमी सतह पर बेहतरीन इक्विटी मार्केट का एजाज भी हासिल है। स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान डॉलर के हिसाब से 55% से जायद मुनाफा दिया है। दूसरी जानिब फिच की जानिब से पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स की रेटिंग मजीद बेहतर की गई है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और सीमेंट की कंपनियों के शेयर्स बेहतरीन ट्रेडिंग देखी जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इजलास आज काबुल में हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द काबुल के लिए रवाना हो गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ के उमूर पर बात होगी। सैफ अफ्रीकी ताउन मज़ीद मौसर बनाने, ख़ित्ते की मजमूई तरक्की और इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहम्मद इसहाक़ डार काबुल में अफ़गान हुक्काम के साथ बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। सैफ अफ्रीकी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश की जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन तिजारती ताल्लुकात और सरहदी ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत मुतवक्के है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी कल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमरा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा के दौरे में बाहिमी मफादात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन में इजाफे, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर बातचीत होगी।
चीन की वजारत खारजा ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को तारीखी, बाएतमाद और अमली शराकत दारी पर मबनी करार देते हुए कहा है कि दोनों मुल्क अहम उमूर में करीबी शराकत दार हैं। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी 3 साल के दौरान दूसरी मरतबा पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। तर्जुमान ने बताया कि इस दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी, जबकि बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक चीन पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रवां बरस सदर पाकिस्तान के दौरे चीन के नतीजे में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। चीनी सदर और पाकिस्तानी क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे के लिए वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा भी ले रहे हैं। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा है। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जबकि उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सफ़र के दौरान वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा किया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। नाज़रीन, बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस बुनेर में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बुनेर के दौरे पर हैं और उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। तमाम तर सूरत हाल का वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और सैलाब मुतासरीन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इमदादी चेक भी तकसीम करेंगे। बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस इस वक्त बुनेर में जो सूरत हाल है, शांगला में जो सूरत हाल है, उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बुनेर और शांगला के दौरे पर हैं। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का और सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दौरे के दौरान बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और सैलाब मुतासरीन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़ज़ाई मुआयना भी किया है। बुनेर और शांगला का सैलाब से तमाम तर मुतासर इलाकों का उन्होंने मुआयना किया है और इस दौरे के दौरान वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और सैलाब मुतासरीन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं।
हालिया बारिशों के पेश नज़र मुल्क भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बोनेर में वज़ीर-ए-आज़म बज़ाते खुद इस वक्त बोनेर के फ़ज़ाई जायज़े पर हैं और उन्होंने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया है। वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं, जिनमें अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जबकि उनमें इमदादी चेक्स भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। फ़ज़ाई जायज़े में बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, इंजीनियर अमीर मकाम और एहसन इकबाल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। बोनेर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाबी बारिशों से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज खुद बोनेर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। नुकसानात का भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया गया और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, जिनमें अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल शामिल हैं। नाज़रीन, बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट भी जारी की गई थी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बज़ाते खुद इस वक्त मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने मुतासरा जो सैलाब मुतासरा अज़ला हैं, जो इलाके हैं, उनका फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर इस वक्त पहुँचे हैं। इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हैं और उन्होंने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है उसका तमाम तर जायज़ा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बुनेर के दौरे पर हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर वो ज़िला है जहाँ पर ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, वहाँ पर जो है वो हलाकतें भी हुई हैं सैलाब की वजह से, घरों को भी नुकसान पहुँचा है। कुछ घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं और जुज़वी तौर पर भी घरों को नुकसान पहुँचा है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला बुनेर में मजमूई तौर पर तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त बुनेर और शांगला के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी उन्होंने करनी है और इमदादी चेक भी वो सैलाब मुतासरीन में तकसीम करेंगे। ज़िला बुनेर की मजमूई तौर पर बात की जाए तो जो PDM में खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 228 अफराद ज़िला बुनेर में सैलाब की वजह से जाँ बहक हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त बुनेर के दौरे पर हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आज सुबह बाजोड़ और मानसेरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप्स रवाना की गई हैं। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, 7 KVA जनरेटर्स, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स और अद्वियात भी शामिल हैं। ये सामान मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम के लिए ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। NDMA के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जोर शोर से जारी हैं, जबकि तमाम सिविल और अस्करी इदारे मुसलसल राबते में भी हैं। तर्जुमान के मुताबिक NDMA की जानिब से तमाम इमदादी कार्रवाइयों की हमा वक्त निगरानी की जा रही है ताकि मुतासरीन तक बर वक्त और मौसर इमदाद पहुँचाई जा सके और ये तमाम तर निगरानी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में NDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आज सुबह बाजोड़ और मानसेरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप्स भी रवाना की गई हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अब खुद भी फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं बोनेर का और इस वक्त वो बोनेर के दौरे पर हैं। जी नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जापान के वज़ारत ख़ारजा में सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा से मुलाकात की है, जिसमें तिजारत, सरमाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। मायाजी टाकुमा ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनने और जापान का सरकारी दौरा करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि 30 साल बाद इस सतह की पाकिस्तानी क़यादत का दौरा खुशाइंद है। मरियम नवाज ने कहा कि जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल है। पंजाब में जापानी तरक्याती मॉडल को अपनाना चाहती हूँ और कुदरती आफात से निपटने के लिए जापान के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने मुश्किल वक्त में जापान की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया और सरमायाकारों के लिए अपनी हुकूमत की सहूलियात से आगाह किया। मायाजी टाकुमा ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इज़हार किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दौरा जापान के तीसरे रोज़ इंतहाई अहम दिन गुजारेंगे। वो टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा और चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज शरीफ आज टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे के अंडरग्राउंड नेहोन हाशी सेक्शन का भी दौरा करेंगी। जायका के वाइस प्रेसिडेंट वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और उनके वफ्द के एजाज़ में इशाया भी देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के लिए इजाफी 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया जा चुका है। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल और इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी तौर पर दुगना किया जाए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में आइंदा 1 हफ्ता बगैर लोड शेडिंग के मुसलसल बिजली फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि वो जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। एक बड़ा कठिन मरहला है, आप काविशें कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे पावर सेक्टर है। अगर 49 में से 37 आपके फीडर्स चल पड़े विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इस तरह सड़क जो है बुनेर में और दूसरी जगहों पर आप आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में सारे जो इस वक्त इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं, खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़रा की जानिब से मुतासरा इलाकों के दौरे और मुतासरीन के लिए मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की निगरानी काबिल इस्ताइश है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए इजाफी 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया जा चुका है। वफाकी हुकूमत के इदारे और NDMA सूबाई हुकूमत के साथ इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर साथ दे रहे हैं। तमाम हस्पतालों की तरजीह बुनियादों पर बिजली फ्राहम की गई है। इमदादी सरगर्मियों को मजीद मुअस्सर बनाने और रवाबत को बहाल करने के लिए 210 मुतासरा फोन टावर्स में से 190 को बहाल किया जा चुका है और 911 पर टेलकोस की जानिब से मुफ्त कॉल की सहूलत फ्राहम की जा रही है। स्कर्दू जगलोट का रास्ता बहाल कर दिया गया है। मुतासरीन के लिए खैमे, अद्वियात, राशन, जनरेटर्स और दीगर अशिया भेजी जा रही हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 308 जबकि मजमूई तौर पर मुल्क में मुतासरीन की मदद के लिए 411 मेडिकल कैंप्स कायम हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की शदीद बारिशों के बाद शहर में आज आम तातील है। शहर की सड़कों से निकासी आब का काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नौरीन, बताइएगा इस वक्त शहर क़ायद की क्या सूरत हाल है और मज़ीद कितनी बारिशों की पेशगोई की गई है? जी, कल सुबह से जो बारिश शुरू हुई तो जलथल और देखते ही देखते पूरे कराची जो है वो पानी की लपेट में, इस तरह से सारी सड़कें थी जो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पूरा दिन वक्फे से कभी तेज़ कभी हल्की बारिश होती रही। अहम शाहराहें तक जो है वो पूरी पानी में डूबी हुई थी, गाड़ियाँ फंस चुकी थी, ट्रैफिक जैम था। कई लोग जो है वो अपने दफातर से निकले और रात देर तक जो है वो 6-6, 7-7 घंटों के बाद अपने घर पहुंचे। कई ऐसी सड़कें थी जहां पर गाड़ियां बंद हो गई थी और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई सड़कों पर अब भी पानी जमा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ ये तारिक रोड का मेन इलाका है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद है। काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आज आम तातील का ऐलान किया गया है। लोगों को कहा गया है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। महकमा मौसमियात की पेशगोई यही है कि मज़ीद बारिशें होंगी। ये सिलसिला जो है वो 22 अगस्त तक जारी रहेगा और कल की जो शदीद बारिशें थी उसमें 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। शेबी इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। कहीं पर सफाई के इंतजाम भी हमें नज़र आ रहे हैं। जो मज़ीद पेशगोई है उसको मद्देनज़र रखते हुए घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जी।
शुक्रिया नौरीन आसिफ, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। और वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है और बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आला ने एम्प्रेस मार्केट सदर और ज़िबुन्निसा स्ट्रीट का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी का भी जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, सैयद नासिर हुसैन शाबी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू ने शहर के मरकजी निकासी आब के निज़ाम तुलसीदास पंपिंग स्टेशन का दौरा किया और बारिश के बाद निकासी आब के इक़दामात का जायजा लिया। मेयर ने मुतल्लिका अफसरान को आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में हालिया शदीद बारिशों और शहरी सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने और हंगामी सूरत हाल के लिए तमाम तर ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल ताउन की हिदायत की। उन्होंने चेयरमैन NDMA को आइंदा 1-2 रोज़ में सिंध के जनूबी अजला में मुतवक्के बारिश के हवाले से मुकम्मल तैयार रहने और लोगों को आगाही फराहम करने के लिए भी हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसों बाजोड़ और मानसरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप्स रवाना की गईं। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, 7 KVA जनरेटर्स, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। ये सामान मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम के लिए ज़िले इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। NDMA के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज और फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि तमाम सिविल और अस्करी इदारे मुसलसल राबते में हैं। तर्जमान के मुताबिक NDMA की जानिब से तमाम इमदादी कार्रवाइयों की हमावक्त निगरानी की जा रही है ताकि मुतासरीन तक बर वक्त और मुअस्सर इमदाद पहुंचाई जा सके। पाक फ़ज़ाया के गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर इमदादी सामान पहुंचाने के साथ मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पाक फ़ज़ाया ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 तैयारे के जरिए 60 टन खुश खुराक, अशाए खुरोनोश और ज़रूरी अद्वियात नूर खान एयरबेस से गिलगित बल्तिस्तान पहुँचाएँ। ये इमदादी सामान NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फ़ज़ाया की इमदादी टीमों ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फ़ज़ाया के तैयारे और ज़मीनी टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ज़ाया की ये इमदादी कार्रवाई आजमाइश की हर घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़े रहने के अफ़वाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार है। स्वाबी के इलाके गदून में क्लाउड बर्स्ट के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई है, जबकि रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए सरगर्म हैं। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 7 एक्सक्यूएटर्स, 6 एम्बुलेंसेज, 2 रेस्क्यू व्हीकल्स, रेस्क्यू 1122 के एहलकार, पाक फौज और TMA की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुदरती आफत में जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। नाज़रीन, शाहराह बल्तिस्तान को अस्तक और बागीचा दोनों मकामात पर बहाली का काम मुकम्मल करने के बाद अब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अस्तक नाले पर सड़क खोलने के बाद बागीचा के मकाम पर शाहराह एक बार फिर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद हो गई थी। पाक फौज के इंजीनियर्स, महकमा तामीरात आमा और मुतालिका इदारों के एहलकारों की रात भर की कोशिशों के बाद सड़क को कारों और ट्रकों के लिए खोल दिया गया है। रास्ते में फंसे मुसाफिर, ऑयल टैंकर्स और अशियाए सर्फ से लदे ट्रक मंजिल की जानिब रवाना हैं। दूसरी जानिब बल्तिस्तान डिवीजन भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियां भी जारी हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में मुलाकात हुई है। गवर्नर ने गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह करते हुए कहा कि हालिया सैलाब से इलाके में राबता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मुतासर इलाकों में अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत बहरान शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। गवर्नर ने जगलोट स्कर्दू रोड, खिजर नलतर एक्सप्रेस वे और बाबूसर रोड के हवालात से तफसीली गुफ्तगू की। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बहाली और मरम्मत के लिए वफाकी हुकूमत से मदद तलब करते हैं। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने वफाक की जानिब से भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जल्द नुकसानात का तखमीना लगाकर मुरम्मती काम का आगाज किया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान 200 गैर कानूनी तामीरात मिस्मार और 191 कनाल इराजी वागुजार करवाई जा चुकी है। मोहसिन नकवी ने इलाके का दौरा करके ऑपरेशन का जायजा लिया और बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि खाली कराई गई इमारतें शफाफ नीलामी के जरिए अलॉट की जाएंगी और सैदपुर को एक नया कमर्शियल और सियाहती मरकज बनाया जाएगा, जहाँ सयाहों को मयारी सहूलियात मुयस्सर होंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नासिम उल उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि गुज़श्ता दिनों पाक अमरीका काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ, हम इस शराकत को माशी मैदान में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतखाना तेल और गैस की तलाश और पैदावार के शोबों में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलत कारी करेगा। अली परवेज मलिक ने कहा कि हुकूमत तेल और गैस की तलाश के लिए ब्लॉक्स की नीलामी कर रही है, जिसमें बैनुल अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और सुनहरा बाब रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ किया गया। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हाज ने 14 मार्च 1971 को पाक फ़ज़ाइया के GD कोर्स में कमीशन हासिल किया। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज मामूल की तरबियती प्रवास के लिए जहाज़ में सवार हुए तो उनका बंगाली इंस्ट्रक्टर जबरदस्ती जहाज़ के कॉकपिट में घुसाया और जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया और जहाज़ का कंट्रोल संभालने की कोशिश की। इस वक्त जहाज़ भारतीय सरहद से सिर्फ 40 मील की मुसाफत पर था। राशिद मिन्हाज शहीद ने जहाज़ का रुख मोड़ने के लिए मज़ाहमत की और जहाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर के लाख कोशिश के बावजूद जहाज़ भारतीय सरहद से 32 मील की दूरी पर तबाह कर दिया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जहाज़ को दुश्मन मुल्क ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रवायात की मज़हर है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि 1971 में आज के दिन में पायलट ऑफिसर ने गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका लाजवाब जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह फ़ौज और कौम के लिए एक लाजवाल तरग़ीब का बायस है। उनकी बहादुरी की दास्तान हमारे कौमी ज़मीर को आज़ादी की कीमत और मादरे वतन के दिफा के लिए दरकार हौसले की लाजवाल याद दहानी है। वज़ीर आज़म ने फ़ौज पाकिस्तान को उनकी लाजवाल मीरास को शानदार ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफादारी, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज के यौम शहादत पर मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने राशिद मिन्हाज शहीद को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने 1971 में गैर मामूली अज़्म और इसार का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनका नाकाबिले तस्खीर हौसला, वफादारी और हुब्बुल वतनी पाक फौज और पूरी कौम के लिए हमेशा से एक लाजवाल तहरीक का सरचश्मा है। राशिद मिन्हाज की शहादत आइंदा नस्लों को उनकी मिसाली हिम्मत और वफादारी की तकलीद करने की तरगीब देगी। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 42, दालबंदीन और तुरबत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों से दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरियाए सतलज में हेड सलमानिकी के मकाम पर पानी की आमद 69,361 और अखराज 58,801 क्यूसिक है, जहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ओकाड़ा की ज़ेर क़यादत दरियाए सतलज में रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से 6 मकामात पर रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया गया है। अटारी, पुरान, बाकर के महार, हेड सलमानकी, दराज के और महरू शेहुका के मकाम से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू की 10 बोट्स और 45 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ के मुताबिक 400 से ज़ायद अफराद को, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं, उनके साजो सामान समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और 40 से ज़ायद छोटे जानवरों को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड ब्लॉकी के मकाम पर पानी की आमद 56,160 क्यूसिक जबकि अखराज 31,410 क्यूसिक है। इंचार्ज ज़िली इमरजेंसी कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड ब्लॉकी में फ़िलहाल पानी की सतह में कमी हुई है और सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने हफ्त मदर और बलूकी समेत दीगर मकामात का दौरा किया। उन्होंने कश्ती में सवार होकर दरियाई रावी में पानी की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों के ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़ेरे इंतज़ामिया के तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। नाज़रीन, लिया में दरियाए सिंध में तुगयानी के बायस नशेबी इलाकों में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। कमिश्नर DG खान अशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा किया। उन्होंने हिफाजती बंद, पत्थर की पिचिंग, रेस्क्यू पॉइंट्स, हेल्थ और वेटनरी कैंपों का जायज़ा लिया और रेस्क्यू 1122 के इनखिला के इंतजामात को सराहा। कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब आवाम की मुश्किलात से आगाह है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि पानी उतरने तक फील्ड में मौजूद रहें और मुतासरीन को इलाज, वैक्सीन और रेस्क्यू सहूलियात फराहम की जाएँ। फसलों और मकानात के नुकसानात का शफाफ सर्वे भी किया जाए। और अब रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का और उसके मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने सूबे भर में 22 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। तफसील से आगाह कर रही हैं अस्का मकसूद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और इसके बेशतर अजला में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% तक रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरियाए सिंध में चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, कालाबाग और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए जहलम के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए रावी के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है, जबकि नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि मौसम बरसात और सैलाब के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। दरियाओं, नहरों, नदी नालों और तालाबों में हरगिज मत नहाएं। सैलाबी सूरत हाल में दरियाओं के अतराफ सैर व तफरीह से गुरेज करें। PDMA ने 22 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। जी बहुत शुक्रिया इसका मकसूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मैन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करेंगे कि सरसब्ज पाकिस्तान के तहत मानसून शजरकारी मुहिम जारी है। खानेवाल में अब तक 2 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कुलज़म बशीर।
ملک میں جنگلات کی کمی کو پورا کرنے اور بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سرسبز پاکستان مہم کے تحت نہ صرف پودے لگائے جا رہے ہیں بلکہ ضلعی انتظامیہ نے ٹی فیکٹری اور ادارہ تحفظ ماحولیات کے تعاون سے 2000 پھلدار اور سایہ دار پودے مفت تقسیم کیے ہیں، جس کا مقصد عوام میں شعور بیدار کر کے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ پلانٹس جو ہیں وہ جنرل پبلک کے اندر، بچوں کے اندر، لوگوں کے اندر تقسیم کیے جائیں، تو اس کے اندر ہم جو ہماری لوکل ویرائٹیز ہیں انہیں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آزاد ملک کے ساتھ آزاد فضا جو ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ آج ہم نے جنرل پبلک کے اندر فری ڈسٹریبیوشن آف پلانٹس کی یہ آج ہم نے ایک اسٹال لگایا، جس کے اندر ہم 2000 پودے جس میں فروٹ ٹریز بھی ہیں، ہمارے انڈیجنس اسپیشیز بھی ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم پودے لگانے میں اور انہیں پروان چڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے پاکستان جس انوائرمنٹل آلودگی کا شکار ہے اس سے بچ نکلے گا۔ سرسبز پاکستان مہم کے تحت ہر شخص کو ایک درخت لگا کر قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ راولپنڈی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بٹالین کمانڈر SSP حافظ عطا الرحمان مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بٹالین کمانڈر نے ملک کی حفاظت میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پرچم کشائی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھانے کے ساتھ سلامی دی گئی اور ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور اب خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ہوگا سخت کریک ڈاؤن۔ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صحت مند پنجاب کی عملی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے اور رواں سال کے دوران چیکنگ میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہماری نمائندہ وردہ سلیم DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وردہ، آگاہ کیجیے گا DG فوڈ اتھارٹی کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اس وقت ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ DG عاصم جاوید صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ عوام کو معیاری خوراک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز پورے پروونس میں متحرک ہیں اور ملک کے حوالے سے، میٹ کے حوالے سے، بچوں کے سنیکس کے حوالے سے، فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے ہماری انسپیکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ پچھلے 7 ماہ اور تقریباً 16-17 دن کے عرصے میں ہم پورے پنجاب میں 8,25,000 سے زیادہ انسپیکشنز کر چکے ہیں اور ان انسپیکشنز میں ہم نے 1100 FIRs جو اڈلٹریشن مافیا ان کے خلاف کی، 1 بلین سے زیادہ کے ہم جو ہے وہ فائنز کر چکے ہیں اور تقریباً ہم نے 3,000 کے قریب جو پریمیسز ہیں ان کو سیل کیا۔ جہاں تک ملک کی انسپیکشنز کا تعلق ہے تو ملک جو ہے وہ ہمارا ایک فوکس ایریا ہے۔ ملک میں ہم نے تقریباً 223 ملین لیٹر سے زیادہ جو ملک ہے اس کو چیک کیا پورے پروونس میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے صحت مند پنجاب کی تکمیل، اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں، CM کے ویژن کی دو جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں مینلی۔ ایک تو یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ اڈلٹریشن مافیا، یعنی کہ فوڈ سیفٹی کو آپ نے ہر حال میں انشور کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا حصہ وہ یہ ہے کہ آپ نے نیوٹریشنل ویل بینگ کے حوالے سے فوکس کرنا ہے۔ تو ہماری نیوٹریشن ویل بینگ کے حوالے سے اسکول نیوٹریشن پروگرام چل رہا ہے، کھیلتا پنجاب نیوٹریشن پروگرام چل رہا ہے، اڈولسنٹ گرلز نیوٹریشن پروگرام چل رہا ہے، خواتین کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ نیوٹریشن پروگرام چل رہا ہے۔ اور اس میں ہم باقاعدگی سے ہر مہینے جو ہے وہ ایک تو اویئرنیس کیمپینز بھی کرتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر جا کے، جیسے حج میں جا کے ہم نیوٹریشن کی وہ جو ہے وہ اویئرنیس اور ان کو کٹس جو ہے وہ حاجیوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا CM صاحبہ کا ہی ویژن ہے کہ ایک تو فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو آبزرو کروانا، ان کی امپلیمنٹیشن کروانا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غذائی ضروریات ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جس دن CM صاحبہ نے چارج ازیوم کیا اسی وقت مجھے اس سے تھوڑی دیر بعد مجھے چیف سیکرٹری پنجاب کی کال آئی کہ CM صاحبہ کی ڈائریکشنز ہیں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ دا اڈلٹریشن مافیا۔
آپ خود بھی فیلڈ پہ نکلیں، اپنی ٹیمز کو بھی نکالیں اور اپنی انسپیکشنز کو زیادہ کریں۔ سی ایس کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ڈائریکشنز وقتاً کنوے ہوتی رہتی ہیں، اور جو آف لیٹ ہے ہم نے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ملک اور میٹ کے حوالے سے اپنی انسپیکشنز کا دائرہ کار مزید جو ہے وہ تیز کیا ہے۔ 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس کے اوپر ہمیں لوگ جو ہے وہ کمپلینٹس بھی کرتے ہیں، ہم ان کی کمپلینٹس کو جو ہے ایڈریس کرتے ہیں، اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ پہلا ادارہ بننے جا رہی ہے کہ جو کہ چیٹ باٹ بیسڈ جو ہے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ لوگوں کا بھی، عوام کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو کہ ہمیں جو ریئل ٹائم ایک فیڈ بیک ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، شاہینوں کے شہر سرگودا میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو 194 کتابوں کے مصنف ہیں اور ہر سال 14 اگست پر اپنی نئی کتاب کی اشاعت کرتے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ سرگودا سے دیکھیے آصف حنیف کی رپورٹ۔ قدرت جب کسی خطے پر مہربان ہوتی ہے تو اس مٹی میں علم و ادب کے بڑے بڑے نام پیدا کرتی ہے، جن میں علمی ادبی دنیا کا درخشاں ستارہ پروفیسر ڈاکٹر ہرش تبسم ہے، جن میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اس وطن کی محبت میں اب تک 194 کتابوں کے مصنف بن چکے ہیں۔ ان کی نمایاں تصنیف میں اے میرے وطن، اقبال شناس، اے میرے پیارے وطن، اقبال اور سرگودا، سیر پاکستان شامل ہے۔ ان کی کتابیں وطن سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ عرصہ 55 سال سے ریڈیو، ٹی وی اور مختلف تقریبات میں کمپیئرنگ کے میدان میں ہمیشہ داد و تحسین ملی ہے۔ آج ہم نے اسی جذبے کا اظہار کرنا ہے جو 1965 کی جنگ میں تھا، مئی 2025 میں دیکھنے کو ملا۔ مارکہ حق رکا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سروں سے کفن باندھ کر ہمیشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آؤ اپنے جسم چندے اینٹ پتھر کی طرح، بے درو دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ان کے علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی بار قومی و بین الاقوامی اعزازات اور میڈل سے نوازا گیا۔ پریزیڈنٹ ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، آل پاکستان لٹریری ایوارڈ، اقبال میڈل، اور حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے ایوارڈ حاصل کیا۔ ادبی حلقوں کا کہنا ہے پروفیسر ڈاکٹر ہرش تبسم نہ صرف سرگودا بلکہ پورے پاکستان کا فخر ہے۔ ان کی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہرش تبسم ہر سال 14 اگست کو اپنی محبت کا اظہار اپنے وطن سے 14 اگست کو اپنی نئی کتاب اشاعت کر کے کرتے ہیں۔ آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگودا۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ سیف فریقی سیریز اور ACC ایشیا کپ T20 میں شرکت کے لیے قومی کرکٹ ٹیم آج دبئی روانہ ہو رہی ہے۔ قومی اسکواڈ پاکستان سے 4 مختلف گروپوں کی صورت میں دبئی روانہ ہوگا۔ کھلاڑی دونوں ایونٹس کی تیاری کے لیے کل سے دبئی میں تربیتی کیمپ میں شرکت کریں گے۔ قومی کرکٹرز ICC کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ، جبکہ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں T20 پریکٹس میچ بھی کھیلیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ٹیم کے تمام پریکٹس سیشن اور پریکٹس میچز دبئی میں منعقد ہوں گے تاکہ کھلاڑیوں کو ایونٹ سے قبل بھرپور تیاری کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بھارت کے T20 اسکواڈ میں سوریہ کمار یادو کپتان، جبکہ شبمن گل نائب کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوام دوبے، اکشر پٹیل، جتیش شرما، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ورن چکرورتی، کلدیپ یادو، سنجو سمسن، ہرشیت رانا اور رنکو سنگھ شامل ہیں۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے UAE میں شروع ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں ہی ہوگا۔ بھارتی ٹیم اپنا پہلا میچ 10 ستمبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف دبئی میں کھیلے گی۔ ناظرین، کرسٹیانو رونالڈو کے کلب النصر نے سعودی سپر کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہانگ کانگ میں کھیلے گئے میچ میں شائقین کی بڑی تعداد اپنے ہیرو کرسٹیانو رونالڈو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آئی۔ سیمی فائنل النصر نے الاتحاد کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ سادیو مانے نے 10ویں منٹ میں گول کر کے النصر کو برتری دلائی، تاہم 6 منٹ بعد الاتحاد کے اسٹیون برگمن کے گول نے مقابلہ برابر کر دیا۔ 25ویں منٹ میں سادیو مانے نے ریڈ کارڈ ملا اور انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔ مانے سعودی عرب کے سعودی کپ میں ریڈ کارڈ لینے والے النصر کے تیسرے کھلاڑی ہیں۔
हाल ही में अल नसर की टीम का हिस्सा बनने वाले पुर्तगाल के जोआओ फेलिक्स ने खेल के 61वें मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास गोल करके अपनी टीम को फतह में अहम किरदार अदा किया। फाइनल में अल नसर का मुकाबला आज अल कादसिया और अहली के दरमियान सेमीफाइनल की फातेह टीम से होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की तरफ से पाकिस्तान की स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने टीम का इस्तकबाल किया और उनके खेल की तारीफ की। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम दुनिया भर में इंटरनेशनल मैचेस खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। यूके में 4 मैचेस खेलकर शानदार पोजीशन हासिल की और इससे पहले नॉर्वे कप में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इस मौके पर स्ट्रीट चिल्ड्रन के हुकूक, तालीम, खिदमात और वक़ार का जिक्र किया गया ताकि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख सकें। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा है कि बच्चों की मेहनत और जज्बे पर फ़ख्र है और उनसे बहुत उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद करते रहेंगे। नाज़रीन, पोलैंड की इगा श्वेटेक ने करियर का पहला सिंसिनाटी ओपन टाइटल जीत लिया है। अमरीकी रियासत ओहायो में खेले गए WTA 1000 के फाइनल में इगा श्वेटेक ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को शिकस्त दी। 6 मरतबा की ग्रैंड स्लैम फातेह ने टाइटल तक अपने सफ़र में कोई सीट नहीं हारी और फाइनल में भी निहायत शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। श्वेटेक ने पाओलिनी को 7-6 और 6-4 से जेर किया। पोलिश खिलाड़ी का ये 11वां मास्टर्स 1000 टाइटल है। रुख करेंगे मेन डेस्क का। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन का वक्त हुआ ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ।